So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. And इस particular chapter के अंदर हम cover करने वाले हैं हमारा chapter number 9 that is errors. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट एरर्स को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं रस्ट के अंदर एंड रस्ट की जो एरर हैंडलिंग है वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कैसे डिफरेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 9 दैट इज एरर हैंड. सो वी आर एट चैप्टर नंबर 9 एरर हैंडलिंग. सो लेट्स स्टार्ट. Errors are a fact of life in software. So Rust has number of features for handling situations in which something goes wrong, right? In many cases, Rust requires you to acknowledge the possibility of an error and take some action before your code will compile. This requirement makes your program more robust by ensuring that you will discover errors and handle them appropriately before you have deployed your code to the production. एक नेटमेंट पर बताता हूँ क्या होता है. देखो बाकी लैंग्वेजेस में ना वी हैव समथिंग नोन एज लाइक ट्राई कैच फॉर एरर हैंडलिंग. सो हम क्या करते हैं, हम अपना जो मेन कोड होता है उसको हम ट्राई ब्लॉक में डालते हैं एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग वी हैव द कैच टू कैच दैट एरर. रस्ट में ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है. ओके रस्ट में ना एरर हैंडलिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने काफ़ी डिफरेंटली बनाया, जिसमें इन्होंने दो तरीके के एरर्स बनाए. लाइक देयर कैन बी टू कैटेगरीज फॉर एन एरर, रिकवरेबल एरर एंड अनरिकवरेबल एरर. इसका क्या मीनिंग? रिकवरेबल एरर मतलब कि वो प्रोग्राम को क्रैश नहीं करता, यू कैन रिकवर फ्रॉम दैट एरर, यू कैन डू समथिंग, यू कैन रीट्राई समथिंग. अनरिकवरेबल जिसमें तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा. सो इन दो एरर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी वेरी ईजी. फॉर अ रिकवरेबल एरर सच एज अ फाइल नॉट फाउंड एरर वी मोस्ट लाइकली वांट टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम टू द यूजर एंड रीट्राई द ऑपरेशन. Unrecoverable errors are always symptoms of bugs such as trying to access a location beyond the end of an array. So we immediately want to stop the program. Okay, so ये हैं दो तरह के errors. Most languages don't distinguish between these two kinds of errors and handle both in the same type of way using mechanisms such as exceptions. So वही try catch की जो हमने बात की, exception handling. Rust doesn't have exceptions. Instead, it has a type result for recoverable errors and panic macro that stops the execution when the program encounters an unrecoverable error. This chapter will cover panic first and then talk about the result. So अगर आपको किसी एरर से रिकवर करना है यू कैन यूज़ द रिजल्ट एंड अगर आपको क्रैश कर देना है, अनरिकवरेबल करना है तो यू कैन यूज़ द पैनिक मैक्रो. ये एक मैक्रो है, करेक्ट. सो एक काम करते हैं, एरर हैंडलिंग हमें पता लगेगा. तो पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करते हैं पैनिक को. ये पैनिक मैक्रो करता क्या है? ओके सो अनरिकवरेबल एरर्स विथ पैनिक. समटाइम्स बैड थिंग्स हैपन इन योर कोड. समटाइम्स क्यों, मेरे साथ तो हर बार ही होता है एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. No, I can do a lot of things about it. In these cases, Rust has the panic macro. There are two ways to cause panic in practice: by taking an action that causes our code to panic, or explicitly calling the panic macro. In both cases, we cause a panic in the program. By default, these panics will print a failure message, unwind, clean up the stack, and quit. Via an environment variable, you can also have Rust display the call stack when the panic occurs to make it easier to track down the source of the panic. ठीक है, देखो इस चीज़ को पढ़ते हैं ना. ये अनवाइंडिंग द स्टैक एंड अबॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट व्हेन पैनिक अकर्स द प्रोग्राम स्टार्ट्स अनवाइंडिंग, जिसका क्या मतलब है? रस्ट walks back up the stack and clean up the data from each function it encountered. However, walking back and cleaning up is a lot of work. Rust therefore allows you to choose an alternative of the immediately aborting, which ends up the program without cleaning up. Memory that the program was using will then needed to be cleaned up by the operating system. If in your project you need to make the resultant library as small as possible, you can switch from unwinding to aborting upon panicking. तो हमें क्या करना है, हमारी जो cargo.toml फाइल है उसमें हम बोल सकते हैं भाई रिलीज मोड में पैनिक को अबॉर्ट कर दो. ठीक है, सो पैनिक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इस तरह से हम पैनिक्स को क्रिएट कर सकते हैं. तो एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक टू दी डेस्कटॉप एंड हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं. सो मेरा टर्मिनल इधर ओपन हुआ. सो दिस इज़ माई टर्मिनल. टर्मिनल के अंदर सीडी करते हैं रस्ट लर्निंग्स के अंदर. पता नहीं कहाँ टाइप कर रहा हूँ मैं, रस्ट लर्निंग्स. रस्ट के साथ ओके आई हैव टू सीडी इनटू द रस्ट लर्निंग्स एंड यहाँ पे हम करेंगे कार्गो न्यू एरर हैंडलिंग. ओके एरर हैंडलिंग. सो एरर हैंडलिंग बन गया. सीडी करते हैं एरर हैंडलिंग के अंदर एंड यहाँ पे हम कर लेंगे कोड डॉट. ओके सो ये क्या करेगा? वी एस कोड को स्पिन अप कर देगा. सो यू कैन सी दैट दिस इज आवर वी एस कोड. तो सबसे पहले पैनिक मैक्रो को देखते हैं. पैनिक मैक्रो करता क्या है? सो अगर हम बस यहाँ पे प्रिंटलन करते हैं हेलो वर्ल्ड,
फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पैनिक कर देता हूँ। यहाँ पे हम पैनिक कर देंगे, दिस इज़ माई पैनिक, एंड उसके बाद हम प्रिंट एलन कर देते हैं एक, ठीक है, प्रिंट एलन, एंड प्रिंट एलन कर देंगे दैट दिस इज़ एंड ऑफ द प्रोग्राम। नाइस। सो इसको रन करके देखें, इसको रन करके देखें, यू कैन ऑलरेडी सी दी वार्निंग दैट ये ना एक अनरीचेबल कोड है, बिकॉज आप यहाँ पर पैनिक कर रहे हो तो आप यहाँ पर कभी रीच ही नहीं कर पाओगे, विच इज़ ट्रू। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, यू कैन सी व्हाट हैपेंड, पैनिक हो गया। देखो हेलो वर्ल्ड आया, फिर पैनिक हुआ, कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 4 कॉलम नंबर 5 पे ये पैनिक हो गया। सो यू कैन सी दी पैनिक का स्टैक ट्रेस, एंड ये पर्टिकुलर लाइन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं की। तो पैनिक मैक्रो करता क्या है, पैनिक बेसिकली क्रैश कर देता है प्रोग्राम को, आगे एग्जीक्यूट नहीं होने देता। अगर आप अभी तक इन वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे तो आपने देखा होगा दैट हमने पैनिक काफ़ी जगह देखा है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर आपके पास एक एरे है, यू हैव एन एरे, फिर आप क्या करते हो, इसका ना कोई एक एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई करते हो। सो ARR एट लेट्स गिव एन इंडेक्स में बी 10 जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, करेक्ट। देन इफ आई ट्राई टू प्रिंट एलन दैट द एलिमेंट एट 10th इंडेक्स इज ये पर्टिकुलर एलिमेंट, तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में यू नो दैट 10th इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे मैं इसको रन करूंगा, यू गॉट अ पैनिक, सी दिस ऑपरेशन विल पैनिक एट द रन टाइम। ओके, तो वो बोल रहा है कि यार ये पर्टिकुलर ऑपरेशन क्या होगा, पैनिक हो जाएगा रन टाइम पे, ठीक है, बिकॉज आप एक ऐसा एरे एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो जो आपकी मेमोरी से आउट ऑफ बाउंड है, तो इट्स अ पैनिक, ठीक है। तो पैनिक क्या करता है, आपके प्रोग्राम को क्रैश करता है। द कॉल टू पैनिक कॉजेज द एरर मैसेज कंटेन्ड, ओके, shows the panic message and places in our source code where the panic occurred. So panic क्या करता है, in this case the line indicated the part of our code, तो basically ये बता रहा है कि panic बताता है that कहाँ से ये panic occur हुआ, किस लाइन से हुआ, okay. सो सेम एग्जाम्पल यू कैन सी, इन्होंने एक वेक्टर बनाया, इन्होंने एक वेक्टर को एक्सेस करने का ट्राई किया, सो दिस विल कॉज द एरर। सो अगर आप इसको ट्राई कर सकते हो, सो v at 99 विच डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, तो लेट्स रिमूव दिस println 9। सो नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम यू विल गेट अ पैनिक, सी पैनिक्ड, क्यों, बिकॉज आउट ऑफ बाउंड था, द लेंथ 3 बट द इंडेक्स इज 99, तो वो बोल रहा है कि इसकी लेंथ 3 है लेकिन आप इंडेक्स डाल रहे हो 99, सो इट्स अ पैनिक, प्रोग्राम क्रैश। ये लाइन कभी प्रिंट ही नहीं हुई, क्यों, बिकॉज प्रोग्राम पैनिक कर गया, ओके। सो दिस इज बेसिकली दी पैनिकिंग। तो देखो उन्होंने क्या बोला शुरू में, दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वे दैट यू कैन पैनिक, बाय टेकिंग एन एक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हुआ था, ऑटोमेटिकली हमारे एक्शन के कारण पैनिक हुआ, या फिर मैं एक्सप्लिसिटली पैनिक को कॉल कर सकता हूँ। सो पैनिक हमें समझ आ गया दैट पैनिक क्या करता है, प्रोग्राम को क्रैश कर देता है, विच इज़ अनरिकवरेबल एरर, ओके। सो इससे बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम पैनिक मैक्रो का यूज़ करते हैं टू थ्रो सम काइंड ऑफ एरर। तो जावास्क्रिप्ट में लाइक वी हैव थ्रो न्यू एरर, सिमिलरली वी हैव पैनिक मैक्रो जिसमें यू कैन पास समथिंग एंड दैट विल कॉज द प्रोग्राम टू क्रैश। हमने अभी तक देखा दैट हमारा प्रोग्राम काफ़ी बार पैनिक करता है जब हम कुछ इंटरनल एरर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक अनरिकवरेबल एरर है, आप एक ऐसा इंडेक्स ट्राई कर रहे हो विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस इज एन अनरिकवरेबल एरर, राइट। लेकिन आप इसको रिकवरेबल भी बना सकते हो, यू कैन यूज डॉट गेट। सो इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पर एक गेट का ट्राई किया था, सो वी कैन डू अ गेट विच जो क्या रिटर्न करता है, जो एक ऑप्शनल रिटर्न करता है। सो यू कैन एक्चुअली डू अ रीट्राई, या फिर आप इसको कह रहे हो कि भाई डॉट गेट से पैनिक मत करना, बट अगर आप इसको डायरेक्टली इंडेक्स से ट्राई करोगे एक्सेस करने का तो वो पैनिक कर जाएगा। सो पैनिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सो आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना। नेक्स्ट में हम देखेंगे दैट रिजल्ट क्या होता है, ये रिजल्ट क्या होता है, रिकवरेबल एरर्स क्या होते हैं, ओके। सो विद दिस बहुत ही एक छोटा वीडियो था जिसमें हमने देखा था पैनिक मैक्रो क्या करता है, किस तरह से आप कोड को पैनिक एंड क्रैश कर सकते हो। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज अनरिकवरेबल एरर्स, एंड विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम देखेंगे रिजल्ट, that what is a result type in Rust. With that, let's meet you in the next one. Until then, bye bye and take care.